Hello students, in previous video we learned what is email, how to create an email ID, how to send a message through email, how to attach a file using file attachment option available in send mail option, and what is the function of CC and BCC available to the send mail option of recipient area. Now in this video we learn about the Google Drive facility available on internet. Students, using Google Drive we can save our digital data or documents to the internet, and we can use this data anywhere, anytime. Okay students, now let us see how it is look like. Now I am logging my Gmail. That means you have to first log in to your Gmail account, Gmail, sign in. Here you can choose or give your email ID. After that, give your password. Click next. Now this is the total interface of your Google account, that means your Gmail account. Okay, now in this part, these 9 dots have many options. Here we find the drive option. Have you seen it? This drive option is called the Google Drive. Yes, this is the total interface of Google Drive. Here we can upload our document over internet and can be used anywhere, anytime. The total capacity of a Google Drive is 15 GB. Here it is show you that the total storage of a Google Drive is 15 GB. I have used 2 GB out of 15 GB. That means 13 GB is remaining capacity of my Google Drive. Now the first thing, that how we can upload a document or any digital data to our Google Drive. Let's have a look. We click on this new options available at left side of your screen, new. We click here, new. Here we got file upload and folder upload. We press here file upload. Now we can choose any file that we want to upload to our Google Drive. Suppose I am giving this file, which have capacity, which have file size 5.08 MB. Now I opened it. Now this is showing you the uploading file. This will show you your file is now uploading. Wait
till uploading. Yes, now your file is uploaded to your Google Drive. Here we can open it. Yes, this is my document that I have recently uploaded to my Google Drive. Now अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो फाइल है अपलोड हो गया है? तो हम अपने माई ड्राइव वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम देखिए बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे ऑप्शन है। तो देखिए मैंने अभी QBasic डॉक फाइल को यहाँ पे अपलोड किया था, तो यहाँ पे देखिए वो शो कर रहा है। ये जो फाइल है ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है। देखिए मैं आपको जूम करके इसको शो करता हूँ। ये देखिए हमने इस फाइल को यहाँ पे अभी अपलोड किया था। ये फाइल अभी हमारे गूगल ड्राइव में आ गया है और यहाँ आपका शो कर रहा था कि आपका जो फाइल है अपलोड हो रहा है। आफ्टर अपलोडिंग ये आपका एक यहाँ पे ग्रीन साइन शो कर रहा है, राइट। तो आपने देखा कि कैसे हम फाइल गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं। और बेसिकली स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि गूगल ड्राइव का एक फैसिलिटी है जिसमें हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, चाहे मल्टीमीडिया से रिलेटेड हो, दैट मीन्स कि आपका कोई एक शॉर्ट वीडियो हो या फिर आपका MP3 कोई सॉन्ग हो, तो आप इन सभी फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक। और इसका कैपेसिटी जो होता है गूगल ड्राइव का वो होता है आपका 15 GB। तो याद रहे कि आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे रखने चाहिए ताकि ये जो आपका 15 GB जो है स्पेस ये बेकार ना हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जो इम्पोर्टेंट है, जिनका यूज़ हम बार बार करते हैं कहीं पे भी अगर जाते हैं तो उनका यूज़ हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे हम सेव करते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कि ये फाइल अपलोड तो हमने कर लिया। अब सपोज आपको कोई फाइल डिलीट करना हुआ, तो आप कैसे कीजिएगा? तो सिंपल, जैसे इस QBasic फाइल को ही हम चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो हम इस फाइल को सिलेक्ट किए। आफ्टर सेलेक्ट हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आते हैं। इन ऑप्शंस में सबसे नीचे एक ऑप्शन है रिमूव। इस पे जब हम प्रेस करेंगे तो ये आपका फाइल दिखे आपके गूगल ड्राइव से डिलीट हो गया है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कंप्यूटर में हम कोई भी फाइल जब डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब परमानेंटली वो डिलीट नहीं होता है। सेम टू सेम गूगल ड्राइव में भी अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो यहाँ एक ट्रेस फोल्डर है, इस वाले फोल्डर में वो चला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है, ऐसे जूम करके आपको शो करता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ देखिए फाइल आपके ट्रेस फोल्डर में यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए ट्रेस फोल्डर ऊपर में लिखा हुआ है और यहाँ पे शो कर रहा है। दैट मीन्स कि आफ्टर डिलीटिंग अ फाइल इन अ गूगल ड्राइव द फाइल गोज टू दिस ट्रेस फोल्डर ऑप्शन। याद रखिएगा कि किसी भी फाइल को अगर आप गूगल ड्राइव में डिलीट करते हैं तो इस ट्रेस फोल्डर में चला जाता है, और कंप्यूटर में जब हम डिलीट करते हैं तो वो किस फोल्डर में जाता है? तो रिसाइकल बिन, ठीक। अब आप चाहते हैं कि इसे हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाए, तो आप सिंपल ट्रेस फोल्डर में जाइए, उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक प्रेस कीजिए, इसके बाद डिलीट फॉर एवर ऑप्शन को आप
प्रेस कीजिए तो वो क्या होगा, आपके टोटल गूगल ड्राइव से ही रिमूव हो जाएगा हमेशा के लिए। और अगर आप चाहते हैं इसे फिर से लाना तो आप इसके ऊपर देखिए एक ऑप्शन है रीस्टोर। रीस्टोर से क्या हो जाएगा, ये जो फाइल जो आपने डिलीट किया था वो वापस आपके गूगल ड्राइव में चला जाएगा। ओके, तो हम इसे फिलहाल डिलीट कर देते हैं, डिलीट फॉरएवर। चलिए डिलीट हो गया। ओके, तो यहाँ हमने देखा क्या कि कैसे हम किसी फाइल को अपलोड करते हैं उसके बाद डिलीट करते हैं। अब सपोज़ किसी फाइल को मुझे शेयर करना है तो हम फिर से अपने ड्राइव में जाएंगे और सपोज़ मैं किसी फाइल को चाहता हूँ कि शेयर करूँ, तो जैसे मैं इस फाइल को मैं चाहता हूँ शेयर करने के लिए, ठीक। तो शेयर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जिस फाइल को आपको शेयर करना है आप उस फाइल पे जाइए। उस फाइल पे जाने के बाद राइट क्लिक प्रेस कीजिए। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आपके पास सबसे ऊपर देखिए एक शेयर ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कीजिए। आपके सामने एक ऐसा विंडो आएगा। इस विंडो में आपसे क्या पूछ रहा है, आपका इंटर नेम और ईमेल एड्रेस, मतलब जिसे इस फाइल को सेंड करना है या फिर शेयर करना है जिसके साथ, उनका ईमेल यहाँ पे आप दे दीजिए और उसके बाद डन कीजिए। तो क्या होगा, वो फाइल जो है उस पर्सन के पास चला जाएगा जिसका ईमेल यहाँ पे आप शेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि कैसे फाइल हम शेयर कर सकते हैं यूजिंग गूगल ड्राइव। ओके, अब हम देखते हैं कैप्चा कोड। जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया था कि कैप्चा कोड क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कैप्चा कोड क्या होता है। कैप्चा कोड क्या है, एक तरह का रिस्पॉन्स कोड बोल सकते हैं। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई पर्सन किसी वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहते हो और इस कैप्चा कोड का यूज़ एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया जाता है और ये आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि ये जो कैप्चा कोड है, ये जो कोड है, इस कोड को कोई पर्सन इनपुट कर रहा है, कोई रोबोट नहीं। दैट मीन्स कि जो कैप्चा कोड होते हैं उसे एकमात्र ह्यूमन बींग्स ही इंटर कर सकते हैं, रोबोट्स नहीं कर सकते। बिकॉज क्योंकि रोबोट में एक इनबिल्ट उनके अंदर कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं और उसी वर्क को करते हैं जो प्रोग्राम उनमें कोडिंग के द्वारा सेट किया हुआ होता है। बट ह्यूमन्स तो सब जानते हैं ना, तो इसीलिए क्या होता है कि वो बस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि ये जो पर्सन बैठे हुए हैं लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक ह्यूमन बीइंग है, नॉट अ रोबोट। देखिएगा समटाइम्स आप जब कभी लोग लॉगिन करने के लिए कहीं पे आप जाते हैं किसी पेमेंट के लिए, तो वहाँ से हमेशा कैप्चा कोड वहाँ पे पूछता है, एक तरह का सिक्योरिटी रिस्पॉन्स है। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग क्या है, तो ई शॉपिंग एक ऐसी फैसिलिटी है ऑन इंटरनेट बाय विच वी कैन बाय और सेल एनीथिंग्स। घर बैठे बैठे हम किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं यूजिंग अ ई शॉपिंग वेबसाइट। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ई शॉपिंग वेबसाइट ऑन किया है, फ्लिपकार्ट, देख रहे हैं आप। अब आपको अगर शॉपिंग करना है, सपोज घर बैठे आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हो, तो आप इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो सिंपल आप फ्लिपकार्ट के आप जाकर गूगल में लिखिए फ्लिपकार्ट, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, मतलब अगर आप न्यू यूज़र हैं या फिर आप अगर लॉगिन ना भी करें तो आप अगर बाई कुछ करने जब जाएंगे तो आपको लॉगिन करना होगा। और अगर आप यूज़र नहीं हैं इसमें तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाइएगा लॉगिन ऑप्शन पे, ठीक, मैंने यहाँ प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास तो कोई है नहीं इसका अकाउंट,
मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएट भी नहीं किया था, तो मैं यहाँ एक नीचे ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ से मैं फ्लिपकार्ट में एक अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ और वहाँ से उसके बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये वो नहीं है कि जीमेल में हमने जो क्रिएट किया था उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर ले, वैसा नहीं। वहाँ उसका सिर्फ हम ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं बट पासवर्ड नहीं। और इसमें हमें फिर से अपना अकाउंट ओपन करना होगा, तभी हम लॉगिन कर पाएंगे। तो जीमेल के ईमेल आईडी और पासवर्ड से यहाँ लॉगिन नहीं होगा, बस उसका ईमेल चाहिए होता है एज अ यूज़र नेम, बस। तो ये आपका है ई शॉपिंग एक वेबसाइट। अब किसी भी चीज़ को आपको अगर बाई करना है तो आप जाकर यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या है, ई शॉपिंग वेबसाइट। अब देखिए ई शॉपिंग और ट्रेडिशनल शॉपिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए एक सिंपल ही लॉजिक है बहुत, कि ई शॉपिंग में क्या है कि आप घर बैठे बैठे आप जो चाह रहे हैं, जो आपको पसंद आ रहा है, आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल से उस चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। घर बैठे बैठे ही वो सामान आपके पास आ जा रहा है, उसके बाद आप उसके लिए पैसे पे कर रहे हैं। बट ट्रेडिशनल में क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को खरीदने के लिए पहले हमें दुकान पे जाना होता है और वहाँ पे विज़िट करके उसके बाद सामान को खरीदना पड़ता है। बट ई शॉपिंग में ऐसा नहीं है। दूसरी फैसिलिटी क्या होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम ऑनलाइन लेते हैं तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि उसके डिफरेंट ई शॉपिंग वेबसाइट्स पे उसके प्राइस क्या हैं, ओके। और ये देखा गया है नॉर्मली कि ट्रेडिशनल शॉपिंग से ज़्यादा अच्छा ई शॉपिंग होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चीपर रेट में मिल जाती हैं बाहर से। बाहर की तुलना यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको चीपर रेट में मिल जाती हैं, सस्ते में यहाँ पे मिल जाती हैं। प्लस ये आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप बाहर जाते हो तो एक तो आपका रेंट लगा कि आप यहाँ से वहाँ गए, उसका फेयर लगा आपका, आप ऑटो से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, प्लस आपका टाइम भी कंज्यूम हुआ। पर ई शॉपिंग में क्या है, आप घर बैठे बैठे कुछ भी चाहें बाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। यस, बेचने के लिए एक अलग वेबसाइट होता है, जैसे है यहाँ पे OLX। OLX का यूज़ होता है किसी भी आपके पास जो सामान पड़ा हुआ आप चाहते हैं उसे आप सेल करना, तो आप OLX से उसे सेल भी कर सकते हैं, ठीक। अब आइए हम देखते हैं कि अगर आप कुछ भी बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है। चलिए मैं देखता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कोरोना वायरस मास्क सैनिटाइज़र, चलिए नॉट डिलीवरेबल। अच्छा, इस एरिया में इसका डिलीवरी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे नॉट डिलीवरेबल लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इस एरिया में इसको डिलीवर नहीं किया जा रहा है, डिलीवरी फैसिलिटी नहीं है, इसी वजह से वर्क नहीं कर रहा। एनीवे, तो आपको पता चल गया कि कैसे ई शॉपिंग वेबसाइट्स होते हैं, इनका यूज़ कैसे होता है। अब देखिए, अगर इसमें आपको कुछ भी अगर बाई करना हो तो आप सिंपली उस प्रोडक्ट को आप जब प्रेस करोगे, ठीक, तो वहाँ पे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप उसका प्राइस देख सकते हो कि कितना प्राइस है, अवेलेबल ऑफर्स देख सकते हो, ठीक। आपको जहाँ पे चाहिए, जिस प्लेस पे चाहिए उस प्लेस का यहाँ पे आप एड्रेस देते हो। वो जब आप लॉगिन करते हो यहाँ पे फ्लिपकार्ट में या फिर किसी भी ई शॉपिंग वेबसाइट पे, तो वहाँ पे उस समय आपसे आपका एड्रेस पूछा जाता है और वही आपका मेल एड्रेस होता है। दैट मीन्स ये अगर कुछ सामान आप ऑर्डर करते हो तो वो उस प्लेस पे ही ऑर्डर
हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो होता है आप कैश ऑन डिलीवरी, दैट मीन्स कि जब आपको सामान मिले आप तब पे करो। दूसरा होता है कि आप यूजिंग डेबिट कार्ड या फिर यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट, आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब ये रहा हमारा ई शॉपिंग वेबसाइट्स के बारे में सारा जानकारी। अब आते हैं हम ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शंस जो फैसिलिटी हो क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन एक फैसिलिटी है ऑन इंटरनेट, जिससे हम ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट कहीं पे भी किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 4 वेज ऑफ मनी ट्रांसफ़र होते हैं। एक होता है नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र। नेट बैंकिंग में क्या होता है कि हम किसी भी बैंक के वेबसाइट में जाते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल SBI के वेबसाइट में, sbi.co.in। तो नेट बैंकिंग में क्या होता है कि हम किसी भी वेबसाइट, किसी भी बैंक के पर्सनल वेबसाइट में हम जाते हैं और वहाँ पे हम जाकर क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट के लिए। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट नहीं करना होता है, यहाँ पे अकाउंट बैंक हमें देता है खुद। हमें क्या करना होता है, बैंक में जाकर रिक्वेस्ट लेटर एक लिख कर देना होता है कि हमें इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, एक लेटर देना होता है। तो वो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब नेट बैंकिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है नेट बैंकिंग फैसिलिटी। यहाँ पे आप जब प्रेस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। देखिए कॉर्पोरेट या पर्सनल बैंकिंग है तो पर्सनल बैंकिंग के लिए यहाँ पे आप जाते हो। ठीक, और यहाँ पे आने के बाद कंटिन्यू लॉगिन, यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बोलता है देने के लिए। और देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आपको एक कैप्चा है, इमेज कैप्चा आपको बोल रहा है यहाँ देने के लिए। इसका क्या फंक्शन है कि ये आपको एज अ सिक्योरिटी पर्पस यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है ये क्या होता है, बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बैंक से हमें मिलता है कब, जब हम वहाँ पे एक रिटन एप्लीकेशन देते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए, नेट बैंकिंग के लिए। ओके, तो ये हुआ पहला नेट बैंकिंग। सेकेंड होता है यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जब आप अकाउंट ओपन करते तो वहाँ से आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है आप उससे भी क्या कर सकते हो, किसी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, या कोई अगर पेमेंट करना हो तो आप उस डेबिट कार्ड से कर सकते हो। थर्ड होता है ई वैलेट्स। ई वैलेट्स क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वैलेट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जैसे जियो मनी हुआ। ठीक, इसके बाद है और भी बहुत सारे हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वैलेट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जिनमें हम क्या करते हैं, कुछ वैलेट के जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वैलेट का क्या फंक्शन होता है कि पैसे रखने का कोई एक प्लेस। तो उस वैलेट में हम कुछ मनी रखते हैं और वहाँ से हम रजिस्टर करने के बाद उस ई वैलेट साइट पे हम कहीं पे भी किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, फोर्थ होता है यूपीआई ऐप्स। यूपीआई ऐप्स क्या होता है, यूपीआई ऐप्स वो ऐप्स हैं जिनसे हम अपने मोबाइल से ही, अपने मोबाइल का यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यूजिंग मोबाइल। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है,
जैसे UPI ऐप का एक एप्लीकेशन हो गया, जैसे फ़ोनपे, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UPI ऐप्स हमें ये भी फैसिलिटी देती है कि अगर हमारे पास मोर देन 1 या 2 अकाउंट्स हैं तो हम सभी अकाउंट्स को यहाँ लिंक कर सकते हैं, और लिंक करके हम उसी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र इधर उधर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, 4 वेज हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के। फर्स्ट, नेट बैंकिंग। सेकेंड, यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। थर्ड है ई वैलेट, और फोर्थ है UPI ऐप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। इंटरनेट ऑनलाइन सर्विंग के बारे में बस इतना ही आपको जानना था। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।